students, welcome back to online video classes, class 7. Okay, dear students, today we are going to start one new poem. Okay, the poem name is The Shade or The Shade. The Shade is the poem written by Frank Flynn. But before start the poem, do you know what is meant by shade or what is meant by store? You know the store means what? Storeroom at your home. I think you have storeroom at your home. आपके घर पर भी एक storeroom होगा. What we put there? क्या रखते हैं हम वहाँ पर? हाँ, we old things. Yes, जो पुरानी चीजें होती है, जो खराब चीजें होती है, जिन चीजों का कुछ काम नहीं होता है, वो चीजें हम वहाँ पर जाकर स्टोर रूम में रखते हैं. स्टोर वहाँ पर होता है. ओके, आई थिंक यू हर्ड अबाउट द शेड. आपने शेड सुना होगा, लाइक काउ शेड, द टूल शेड और द स्टोर शेड. स्टोर शेड भी कह सकते हो, टूल शेड भी. जैसे कि कुछ टूल्स होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल खेती की जो चीजें होती है, एग्रीकल्चरल जो चीजें होती है, जैसे कि जो आप खेत में यूज करते हैं, वो चीजें आप वहां पर रखते हैं, उस टूल शेड में रखते हैं. उसके बाद अगर आपका गैरेज ही नहीं तो कुछ काम करते हो अलग आपके पेरेंट्स, तो वो चीजें जो होती है काम की चीजें, वो भी आप वहां पर शेड में रख सकते हो. ओके, देन वुड शेड भी हो सकता है. वुड शेड मतलब वहां पर हम जलाने के लिए जो लकड़ी है, वो लकड़ियां वहां पर रखते हैं. जो बहुत सारी चीजों के लिए हम शेड बनाते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इट इज लाइक अ स्मॉल रूम. स्मॉल रूम होती है, नहीं तो कभी कभी बड़ी बड़ी रूम भी उस स्टोर के लिए यूज किए जाते हैं, शेड के लिए यूज किए जाते हैं. And this shade or the store is actually away from our house or backside from our house or near the bottom of any area or near to our house. मतलब वो जो हाउस होता है, वो जो रूम होता है, वो जो शेड होता है, एक्चुअली में वो कहाँ पर होता है? वो हमारे घर के दूर होता है, हमारे घर के पास में थोड़ा सा दूर होता है. अगर घर के अंदर होता है तो वो पीछे के घर का जो पीछे का एरिया है, वहां पर वो शेड होता है. एंड what we use for this shade, what is the importance of this shade? We use this shade or store to storing or keeping something, putting something in that things like cow shed. In cow shed we put एनिमल्स लाइक काउस. काउ का शेड होता है, उसमें काउ रखते हैं. एनिमल्स के अलग अलग शेड होते हैं, उसमें वो अलग अलग एनिमल्स रहते हैं. उसके बाद कुछ टूल्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया, फिर व्हीकल्स भी रख सकते हैं. देन what to do? Ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let her describe it to the class. Now then we will read the poem. Okay, first of all, what you need to do, if you have any friend, आपका कोई फ्रेंड है, कजिन है, देन यू कैन आस्क हिम अबाउट शेड. व्हाट डू यू नो अबाउट द शेड? उसको क्या पूछना है? शेड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है उसको, तो उसके बारे में उसको पूछना है. ओके, दिस इज योर लाइक होमवर्क. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न or discuss about this poem. Okay, very short poem. You can see on page number 48 and 49. Here and here, only few lines in this poem. Now I am going to read this poem. Listen this poem carefully, concentrate here. There is a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in a bed, I lie and I listen. I will open that door one day. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peek through that window one day. My brother says there is a ghost in the shade who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop my head. But I will take a peep one day. I know that there isn't really ghost. My brother tells lies to keep the shade for his day. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his
when. Since I don't know when I will go into that shade, one day soon, but not just yet. Okay, this is the poem, and I'm going to explain this poem line by line. First, in this poem, you can see there is the poet said, Franklin said, there is a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. In the first two lines, you can see we know that there is a garden, or there is a shade at the bottom of our garden. At the bottom of their garden, there is one shade. You can see the picture of that shade also. उनका जो गार्डन है, उनके गार्डन के एक कोने में वो शेड है, और उस शेड में क्या क्या है, विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और अक्रॉस द डोर वहां पर स्पाइडर्स के वेब भी, स्पाइडर यू नो जो स्पाइडर होते हैं, स्पाइडर अपना जाल बुनता है, मकड़ी भी कहा जाता है उसको, वो मकड़ी अपनी क्या अपना जाल जो बुनता है वो कहां पर लटक रहा है, डोर के अक्रॉस में वो लटक रहा है, स्पाइडर्स के वेब. When I am in a bed, I lie and I listen. I will open that door one day. Or that poet said, what he did one day, whenever I lie in a bed, I listen. जब मैं बेड पर सोता हूँ, मतलब तब मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं सुनता हूँ कि I will open that door one day. एक दिन में क्या करूँगा, that door I will open one day. एक दिन में जाकर वो डोर क्या करूंगा, खोलूंगा. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. Okay, here there is a dusty. Dusty means what is meant by dust? Dust, you know dust. Dust मतलब जहाँ पर क्या कह सकते हैं हम उस डस्टी को, डस्टी मतलब वहां पर ज्यादा धूल होती, उस मतलब वो विंडो है, एक पुरानी विंडो है, और उसमें उस पर पूरी तरह से क्या लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है, पूरी तरह से धूल से भरा हुआ है, और पूरी साइड में वो धूल से भरी हुई वो विंडो. तो विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, और वहां पर जो ग्लास है, ग्लास मतलब जो कांच है, विंडो के जो कांच है, वो 3 कांच उसमें से क्या हुए हैं, टूटे हुए कांच है. I often think there is someone staring at me each time that I pass. And then that poet thought, whenever that poet go through that area, that he thought that someone staring at him. और वो जब भी वहां से जाता है, पोएट सोचता है कि मैं जब भी वहां से जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे चुपके से वहां से देख रहा है. I will peep through that window one day. और वो सोचता है कि मैं एक दिन क्या करूंगा, उस विंडो से अंदर झांकने की कोशिश करूंगा. I will definitely peep through that window one day. And my brother says there is a ghost in a shed who hides under the rotten floorboards. Okay, यहाँ पर his brother said there is a ghost in the shed. यहाँ पर उसका जो भाई है, वो भाई क्या कहता है, वो जो शेड है, उस शेड में क्या है, वहां पर एक घोस्ट रहता है. घोस्ट, यू नो घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत कह सकते हैं हम उसे. और घोस्ट आपने देखा है, हैव यू सीन एनी घोस्ट? आपने किसी ने घोस्ट देखा है क्या? नहीं, मुझे पता है किसी ने घोस्ट अभी तक देखा नहीं. देखा है तो मुझे बताओ. ओके, यू कैन टेल मी. I know there is no ghost in our surrounding in daily routine. No one can see the ghost. किसी ने भी घोस्ट नहीं देखा होगा शायद, क्योंकि घोस्ट होते ही नहीं. अगर किसी को पता है, किसी ने देखा है घोस्ट, तो आप मुझे बता सकते हो किसने देखा है वो घोस्ट. तो उसका जो भाई है, वो कहता है कि उस एरिया में, उस शेड में क्या है, एक घोस्ट है. और वो घोस्ट कहाँ पर रखता है, वो अपने आप को कहाँ पर छुपाता है, who hides under the rotten फ्लोरबोर्ड. और वो जो पुराना सा फ्लोरबोर्ड है, उसके नीचे से, रॉटन मतलब उसे कह सकते हैं हम, पुराना रॉटन फ्लोरबोर्ड है, उसके नीचे वो क्या कर रहा है, लकड़ी का जो फ्लोरबोर्ड है उसके नीचे वो अपने आप को छुपाता है. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड,
अगर तुम उसके अंदर, भाई बता रहा है कि उसको, अगर तुम उसके अंदर जाने की कोशिश करोगे, उस शेड के अंदर जाने की, then he will jump out and chop my head. वो बताता है कि जैसे ही तुम अंदर जाने की कोशिश करोगे, that ghost will enter and he will jump out and definitely he will take your head and chop your head. वो क्या करेगा, जंप मारकर बाहर आ जाएगा और तुम्हारा जो हेड पकड़कर, तुम्हारा सिर पकड़कर उसे क्या करेगा, चॉप करेगा, तोड़ेगा उसे. बट आई विल टेक पिक वन डे. तो वो बोलता है नहीं, फिर भी मैं क्या करूंगा, एक दिन वहां पर जाकर ही देखूंगा, वहां पर झांक कर ही देखूंगा, अंदर जाने की कोशिश में करूंगा. I know that there isn't really a ghost, and that poet also said there is no ghost is available in world or in our country, in wherever, कहाँ पर भी ghost नहीं. वो जो फ्रैंकलिन है, पोएट जो है, वो क्या कहता है, यहाँ पर घोस्ट अवेलेबल नहीं. मुझे पता है कि यहाँ पर घोस्ट होता ही नहीं, हमारे यहाँ पर घोस्ट होता ही नहीं, कहाँ पर भी घोस्ट होता ही नहीं. मेरा जो भाई है, माय ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेड. और मेरा जो भाई है, व्हाट ही सेड, माय ब्रदर टेल्स लाइज, मेरा भाई झूठ बोलता है. व्हाई ही टेल्स लाइज, बिकॉज ही वांटेड टू कीप द शेड फॉर हिज डेड. मतलब वो जो शेड है वो कौन यूज करता है, उसका भाई यूज करता है. वहां पर बैठता होगा, छुपता होगा, कुछ काम करता होगा, नहीं तो किसी दूसरी चीज के लिए वो शेड यूज करता है. और उसको वो मतलब जो पोएट है, वो पोएट को वो आने नहीं देना चाहता, इसलिए वो क्या करता है, उसके भाई को डराता है कि वहां पर मत जाओ, वहां पर क्या है, घोस्ट है. There isn't anyone staring or making strange noises. There is no one is there and no one is staring at him and no one making strange noises, no one making strange sound. वहां पर कोई नहीं, वहां पर उसे कोई देखता भी नहीं है, उसे वहां से कोई आवाज भी नहीं आती. वहां पर सिर्फ क्या करता है, वो उसका जो भाई उसे डराने की कोशिश करता है. And the spider has been gone from his वेब. और वो जो स्पाइडर का वेब है, दैट मकड़ी, वो जो मकड़ी का जाला है, वहां पर से स्पाइडर वेब निकल गए. स्पाइडर वेब वहां पर रुके नहीं. सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून. और मुझे भी पता नहीं वो स्पाइडर कब वहां से निकल गए, लेकिन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, बट नॉट जस्ट येट. तो वो क्या कहता है, एक दिन में डेफिनेटली वहां पर जाऊंगा, उस शेड में जाऊंगा, बट नॉट जस्ट ये. लेकिन अभी वो वक्त आया क्या, नहीं, अभी मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दिन डेफिनेटली आई विल गो इनटू दैट शेड. Okay, this is the poem. We just discussed the poem. In this poem we discuss about the poet and think whatever he think about or he thought about the shade in his bottom of garden and various things that he wanted to go into that shade, and how his brother lies him, what he said about the shade, what is in the shade. There is a one ghost, actually there is no ghost, and he know that there is no ghost, and his brother lies to him, वो झूठ बोलता है उसको. These things we discussed, and he wanted to go into that shade, but this is not right time to go into that shade. Okay, this is this poem we discussed. And if you have any difficulty related to this poem, अगर कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, डिफिकल्टीज होती है, तो वो आप मुझे पूछ सकते हो. Okay, so today we stop here, and next video we will start the new words. We will discuss the new words and question answers of this poem. So thank you very much.